Hello dear learners, how are you all? Hope you all are fine. Dear students, in last video, we have seen how a sentence formed. We have read about the sequence of letter, word, phrase, clause and sentence. Finally, we have seen how a sentence be formed. I have told you the difference between alphabet and alphabets. I hope you have remembered this. And today we will read about the parts of sentence. So before start, we will just before start today's class, we will see some sentences and identify the subject, object and verb. So I start. In first sentence, Rekha is doing her work. So in first sentence, what is subject? रेखा. मैंने आपको बताया था जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है. ओके, इट इज़ द सब्जेक्ट एंड इट इज़ वर्ब एंड इट इज़ ऑब्जेक्ट. You will write there. Okay, and second sentence is Mridul is driving a car. Mridul is driving a car. So here Mridul is subject, this is verb and this is object. Mohit is eating mangoes. Mohit is subject and this is verb and this is object. Sia is singing a song. Sia is subject and this is verb and this is object. And here India won the Test cricket series. So here India is subject क्योंकि इंडिया के बारे में बात हो रही है. India won the what? Test cricket series. So it is object. And Rohit surprised me. Last one. Rohit is subject, surprise is verb and me is object. So you can see all these are sentence because they are giving their proper meaning. हमने सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको कि सेंटेंस उसी को हम बोलेंगे जो अपनी प्रॉपर मीनिंग देगा. ओके, तो हम इन सारे सेंटेंस को पढ़ के हम देख सकते हैं कि दे आर गिविंग देयर प्रॉपर मीनिंग. सो टुडे वी विल रीड फर्दर. नाउ आई विल टेल यू व्हाट विल बी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होगा. As you know, there are 8 parts of speech. So in a sentence, only noun and pronoun can come in place of subject and object. 8 parts of speech में से only noun और pronoun ही एक sentence में subject और object का काम कर सकते हैं. You can see in example also. Rekha is doing her work. So what is Rekha? Rekha is the name of a girl, है ना. And you know very well what is the definition of noun. Noun is the name of person, place or thing. तो आप देखेंगे रेखा क्या है. रेखा एक नेम है तो ये नाउन है. एंड हर वर्क इट इज़ ऑल्सो अ नाउन. मृदुल इज ड्राइविंग अ कार. मृदुल इज अ नेम so it is noun. And car, you know, it's a name of thing, it is also a noun. Mohit is eating mangoes. Mohit is a name so it is noun. And mangoes it's a name of thing. So we have discussed about subject and object. Now let's move on verb. अब हम देखेंगे कि verb क्या है. जब भी हमें सेंटेंस में verb का आंसर वर्ड से मिलेगा तो वो आपकी नॉन लिविंग थिंग होगी. और जब भी verb का आंसर हमें whom से मिलेगा तो लिविंग थिंग के लिए यूज़ होगा. वी कैन सी थ्रू एग्जाम्पल. देखिए, रेखा इज़ डूइंग हर वर्क. जब हम क्वेश्चन करेंगे रेखा क्या कर रही है, व्हाट रेखा इज़ डूइंग, है ना. तो आंसर हमें क्या मिलेगा, रेखा इज डूइंग हर वर्क. तो हर वर्क क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है. एंड जब हम क्वेश्चन करेंगे मृदुल इज ड्राइविंग अ कार, व्हाट मृदुल इज डूइंग, मृदुल क्या कर रहा है, तो ही इज ड्राइविंग अ कार. तो आंसर क्या मिला, क्या कर रहा है मृदुल, ही इज ड्राइविंग अ कार. तो इट्स ऑल्सो ए नॉन लिविंग थिंग. लेकिन जब हम देखेंगे, देखिए लास्ट एग्जाम्पल में रोहित सरप्राइज मी, तो क्या हमें इसका, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें इसका आंसर वर्ड से मिल रहा है. रोहित सरप्राइज वर्ड, वी कैन गेट द आंसर, है ना. हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा. बट जब हम पूछेंगे कि रोहित सरप्राइज टू हुम, रोहित ने किसे सरप्राइज किया, सो रोहित सरप्राइज मी. रोहित सरप्राइज टू हुम, रोहित सरप्राइज मी. एंड मी क्या है, लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, आपने देखा कि जब हमें वर्ड का आंसर मिला तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और जब हुम से आंसर मिला तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट है. ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. जब मैं आपको नेक्स्ट वर्ब पढ़ाऊंगी then I will ask question to you. Okay, so dear children, now we will read some rules how to identify noun and pronoun in a sentence. So as you know, noun is the name of person, place or thing. So you can
pick out and you can select the noun and pronoun in a sentence through this, but you have to know some rules also. ठीक है, आपको rules भी पता होना चाहिए. easily आप understand कर सकते हो, आप find out कर सकते हो sentence में noun और pronoun को, but कुछ rules भी आपको आने चाहिए. So here are some keywords and you have to remember this, like what, who and whom. So जब भी sentence में हमें what का आंसर मिलेगा तो वो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन भी हो सकता है, और जब हु का आंसर मिलेगा तो इट विल बी नाउन एंड प्रोनाउन. एंड व्हेन वी विल गेट आंसर फ्रॉम हुम, जब हमें हुम का आंसर मिलेगा तो वो भी आपका नाउन और प्रोनाउन होगा. देखो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी. नाउ इन दिस स्टैंडर्ड यू शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एटसेट्रा. ठीक है. So now we will understand through example. I have written some sentences here and you have to make question. And if you will get the answer of what, who or whom, it will be noun or pronoun. And in a sentence there may be one or more than one noun. Okay, means एक sentence में एक और एक से ज़्यादा भी noun हो सकते हैं. So in first sentence we will see the name of this boy is Rahul. So first question, what is the name of दिस बॉय, तो आंसर क्या मिलेगा? राहुल. एंड सेकेंड, हु से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं. हु इज़ राहुल? राहुल इज़ अ बॉय. तो आपने देखा कि दो नाउन है इस सेंटेंस में. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जेनी इज़ माई सिस्टर. हु इज जेनी? जेनी इज़ माई सिस्टर. ओके. एंड थर्ड, आई लव टू प्ले विद माई डॉग. मुझे अपने डॉग के साथ खेलना पसंद है. तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? टू हुम आई लव टू प्ले. मुझे किसके साथ खेलना पसंद है? तो आंसर क्या आएगा आपका? डॉग. सो इट विल बी नाउन. नाउ वी विल सी रूल्स टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो इफ यू विल गेट द आंसर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ और विच, तो इट विल बी एडजेक्टिव. द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन. इस टीम में डेंजरस बैट्समैन है. तो व्हाट विल बी अवर क्वेश्चन? व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन दिस टीम हैज़? सो आंसर विल बी डेंजरस. इस टीम में कैसे बैट्समैन है? डेंजरस है. तो डेंजरस क्या होगा? एडजेक्टिव. आई लव दैट रेड कार. विच रेड कार? विच कार आई लव? तो आंसर क्या मिलेगा? आई लव दैट रेड कार. तो दैट विल बी एडजेक्टिव. नाउ लेट्स रीड हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब इन अ सेंटेंस. So when we will get the answer of where, how, when and why, it will be adverb. Like Rahul reached Mumbai. So when you will make question here, the question will be where Rahul reached. राहुल कहाँ पहुँचा? तो आंसर will be Mumbai. अब आप कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मुंबई is a noun because it's a name of place. Exactly, it's a noun. But here it is doing function like adverb. ठीक है, adverb of place. When I will teach you adverb, I will teach you in detail. ठीक है, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है adverb. So here adverb of place. ठीक है, ये adverb of place है. अगर आप इसका आंसर, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे नाउन के कि हम नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे. हु, हुम, है ना, और व्हाट. देखिए अब हम पूछिए, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है या एडवर्ब है इन दिस सेंटेंस, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राहुल रीच्ड व्हाट, तो क्या आपको वर्ड से आंसर मिल रहा है? नो. राहुल रीच्ड हु, अब तब भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है. बट अगर आप पूछते हैं कि राहुल रीच्ड वेयर, देन डेफिनेटली यू गेट द आंसर राहुल रीच्ड मुंबई. सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव, एटसेट्रा. ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि आपका जो सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग कर रहा है. ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. रमा रन्स क्विकली. So when you will make the question, what will the question? How Rama runs. Rama कैसे दौड़ती है? तो answer will be quickly. तो it will be adverb. He comes here daily and it is showing frequency of time. When he comes, ठीक है, वह कब आता है? तो आपका आंसर होगा daily. तो it is showing the frequency of time. So in this way we have read that some rules to identify noun, pronoun, adjective and adverb. I will teach you all parts of speech in detail. So dear students, hope you have got understood it. Now you have to learn all the keywords which I have given to you regarding noun, pronoun, adjective, adverb. जो भी मैंने आपको ये keywords दिए हैं, it is very important and you have to learn.
एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस वर्क। मैं आपको इस वर्क की PDF सेंड करूँगी, बट बिफोर राइटिंग इन योर नोटबुक यू हैव टू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। आपको सारी पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। पहले आपको वीडियो देखना होगा अच्छे से, इसके बाद आप अपना काम को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एट फर्स्ट आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, देन अकॉर्डिंग टू यू विल राइट योर नोट्स, ओके। And if you have got any query regarding this, you can ask me in my personal number, or I will explain it in your live class also. Thank you, dear students.